میں خدا کا خادم ایونجلسٹ عدنان فاخر پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، نا امیدی میں امید۔ ہیلیلویا۔ آئے اس کی مرکزی آیت کی جانب پڑھتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتے ہیں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ کتاب مقدس کا تلاوت کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت، تو مل کر کہیں گے آمین۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اس آیت میں یرمیہ نبی خدا کی اس ازلی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خدا کیسا عظیم ہے، خدا کیسا بھلا خدا ہے، وہ کیسا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، جس سے آج کچھ لوگوں نے بہت ہی خدا کی تصویر جو ہے وہ غصے والی اپنے سوچ میں، اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا بہت غضبناک ہے۔ نہیں، بلکہ خدا محبت کا سرچشمہ ہے، اور خدا ہمارے لیے اپنے خیالات جو ہے وہ برائی کے نہیں بلکہ سلامتی کے خیالات رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عنوان کی جانب بڑھیں گے، نا امیدی میں امید۔ جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت سے 20 آیت تک تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک شخص کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، حقیقت واضح ہوتی ہے، اور وہ شخص جو ہے بدرو گرفتہ شخص ہے، اور لکھا ہے کہ اس سے کئی بار جنزیروں سے جکڑا گیا، بیڑیوں سے باندھا گیا، مگر وہ نہ تو اسے زنجیریں روک سکیں نہ بیڑییں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتا۔ اس قدر وہ زوراور تھا، اس قدر اس میں بدروہیں اور لشکر جو ہے وہ کام کرتا تھا۔ اور جب ہم اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں تو وہ شخص جو ہے بالآخر قبرستانوں میں رہنا شروع ہو گیا۔ جب اس سے کوئی بھی دنیا کی طاقت، دنیا کی کوئی بھی چیز نہ روک سکی، تو پھر اسے قبرستانوں میں پھینک دیا گیا اور اسے قبرستان میں چھوڑ دیا گیا۔ ایک زندہ شخص پر ہے مردوں میں، ایک زندہ شخص مگر زندگی کہاں بسر کر رہا ہے؟ مردوں میں۔ اور آپ غور کیجئے کہ وہ شخص، کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے ہر روز دن اور رات اپنے تائیں زخمی کیا کرتا تھا، وہ دن رات اپنے آپ کو مارا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میری جان نکل جائے اور میں ان بدروہوں سے، اس لشکر سے آزاد ہو جاؤں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص ہر روز اپنی موت کا انتظار کیا کرتا تھا۔ میں یہ اپنے تصورات بتا رہا ہوں، یہ میں اپنا خیال بتا رہا ہوں کہ وہ شخص ہر روز یہ سوچا کرتا تھا کہ میں کب اور کیسے مر جاؤں، میری ان بدروہوں سے جان چھوٹ جائے، میری اس لشکر سے جان چھوٹ جائے۔ اور وہ لکھا ہر روز اپنے تائیں زخمی کیا کرتا تھا۔ اب اس شخص کے پاس کوئی بھی امید باقی نہیں رہی، کوئی بھی اس کے لیے چارہ نہیں ہے، زندہ مگر مردوں میں پڑا ہوا ہے، اور ہر روز اپنی موت کا انتظار کرنے والا، ہر روز اپنی موت کا انتظار کرنے والا شخص ہر روز یہ سوچتا ہے میں کب اور کیسے مر جاؤں۔ مگر یاد رکھیں وہ یہی سوچتا رہتا تھا اور وہ جانتا تھا میرے پاس کوئی امید باقی نہیں ہے، مگر خداوند خدا جس کی میں اور آپ
इबादत करते हैं वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। जब उस शख्स की उम्मीद टूट गई, जब उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, जब अब उसके अपनों ने उसे ठोकर दी, जब अब उसके अपनों ने उसे तन्हा छोड़ दिया, जिंदा को मुर्दों में छोड़ दिया, उसकी कंडीशन में छोड़ दिया, तो जब अकेला था तो वो हर रोज कब्रिस्तानों में चलाया करता था और अपने ताई जख्मी किया करता था, यानी हर रोज नाउमीदी और कर्ब में से गुजरता था। मगर मसीह यस्सु को उसकी फिक्र थी। वो दूर से उस शख्स की तरफ गौर करता है जो नाउमीदी की हालत में है। शराज तेरी उंगली कैमरे दे के आ रही पीछे का। वो हर रोज अपनी मौत का इंतजार करता और हर रोज उसके लिए करब दे, मगर उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह दूर से देख रहे हैं उसके सारे हालात को, और कश्ती ली और अपने शागिर्दों के हमरा उस इलाके में पहुंच गए। अब जब यहूदियों को देखा जाता है तो यहूदी जो है वो कब्रिस्तानों में जाते हैं तो अपने आप को नापाक समझते हैं कि हम नापाक हो गए हैं, मगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा उस शख्स के पास पहुंचा जो ना उम्मीद हो चुका था, जो बेदिल हो चुका था, जो हिम्मत हार चुका था। और यीशु मसीह जब उसके पास गया तो यीशु मसीह ने उसकी नाउमीदी को उम्मीद में बख्श दिया, उसको उसके लश्कर से, बदरूहों से, उसके करब से उसको आज़ाद किया, और वो शख्स हंसी खुशी अपने घर को लौटा। और खुदावन ने कहा जा अपने घर लौट जा। हालेलुया। मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, हम आगे भी बढ़ेंगे कि नाउमीदी में उम्मीद कैसे पैदा होती है। वो शख्स जो चलाया करता था वो खुशी अपने घर लौट गया, बदरूहों से आज़ाद हो गया, वो बहाल हो गया। हालेलुया। आए ज़रा आगे बढ़ते हैं। मरकस की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25 से 26वीं आयत पर गौर करते हैं तो हमें एक औरत का तस्करा मिलता है, वो औरत जो नाउमीद हो चुकी थी। आए ज़रा देखें, लिखा है 25वीं आयत में, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और वो कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपने सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। बहुत सारे लोग आज जब बीमार होते तो अपने दौलत पर, अपने रुपए पैसे पर उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और अपने रुपए पैसे पर जो है वो फख्र करते हैं कि मैं तो अपने लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर का, अच्छे से अच्छे वैद्य का, अच्छे से अच्छे तबीब का अपने लिए बंदोबस्त कर सकता हूं। मगर याद रखें, यिर्मयाह बयान करता है कि जब तक खुदावन ही शिफा ना दे तो शिफा जो है वो कभी नहीं मिलती, मौजज़ा कभी नहीं मिलता जब तक खुदा ये मुमकिन ना करे, जब तक खुदा आप पर मेहरबान ना हो। कोई भी मेडिसिन, कोई भी तबीब, कोई भी वैद्य आपके लिए फायदामंद नहीं हो सकता, आपके लिए बरकत का बाइस नहीं बन सकता। और ये औरत जो है, लिखा है ये भी बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी मालू दौलत रखने वाली औरत, और लिखा है कई तबीबों से बड़ा दुख पा चुकी थी और उसकी बजाय तकलीफ कम होने के, उसका तकलीफ और उसका गम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी तकलीफ बढ़ती चली जा रही है, उसका करब बढ़ता चला जा रहा है, और वो हर रोज जो है बीमारी और दुख और करब की हालत में है, और हर रोज दुख बर्दाश्त कर रही है, हर रोज करब की हालत में से गुजर रही है, और हर रोज उसका दर्द दे, हर रोज नाउमीदी की हालत में। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने लोगों को यीशु की बाबत बातें किए हुआ सुना।
लोगों की बाबत बातें करते हुए सुना तो उसकी नाउमीदी में उम्मीद नजर आना शुरू हो गई। वो जो नाउमीद थी, वो जो अपने आप को किसी के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकती थी, वो हालत कि वो किसी के साथ मिलकर बैठ नहीं सकती थी, वो ना तो अपने अजीजों से मिल सकती है, ना अपने रिश्तेदारों से मिल सकती है। वो हर एक सूरत में तन्हा और नाउमीदी की हालत में जिंदगी बसर कर रही है। और आप गौर करें कि वो कैसे करब दे वक्त में से गुजर रही होगी, मगर उसके ख्यालात उसके लिए भी सलामती के। वो करब में से गुजर रही है, वो दुख में से गुजर रही है, मगर लिखा है कि उसने यीशु मसीह की बाबत सुना। और कलाम में क्या लिखा हुआ है? सुनने से ईमान पैदा होता है। जब उसने सुना कि यीशु नाम एक शख्स है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलना देता है, बहरों को सुनना देता है और कोढ़ियों को पाक साफ करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। और जब उसने ये सुना कि कोढ़ियों को यीशु शिफा देता है, तो इसकी बीमारी भी कुछ ऐसी थी, कोढ़ियों के साथ भी कोई मिलजुल नहीं सकता था और जराम के मरीजा के साथ भी कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकता था। इस सारी हालत में जब उसने ये सुना कि ये कोढ़ियों को भी शिफा देता है, ये कोढ़ियों को भी जिंदगी देता है और उनकी मर्ज से उन्हें आजाद करता है, तो कोढ़ियों को भी सेम इसी तरह था। कोढ़ी को कोई छुए या कोढ़ी कोई किसी को छू ले, इन दोनों सूरतों में जो है आदमी नापाक हो जाता था। और अहबार की किताब में इस औरत की बाबत भी लिखा हुआ है कि जो जराम की मरीजा होती है, वो जिस चारपाई पे बैठती है, जिस बेड पे बैठती है, जिस जगह पर बैठती है, जिस चीज को छूती है, अगर कोई इसे छू ले, अगर वो किसी को छू ले, तो दोनों नापाक हो जाते हैं। अगर ये किसी जगह बैठती है तो वो जगह नापाक हो जाती है। यानी ये औरत अकेली तन्हा नाउमीदी की हालत में जब इसने ये सुना कि यीशु कोढ़ियों को छूता है तो कोढ़ी पाक हो जाते हैं, कोढ़ी साफ हो जाते हैं, कोढ़ी तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो इस औरत के अंदर जो नाउमीदी थी वो उम्मीद में नजर आती है। और इस औरत ने अपने घर से ये इरादा कर लिया कि मैं उस मसीहा की पेशाब की छूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और याद रखे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वो नीयत से और उस उम्मीद से निकली है कि मैं यीशु की पेशाब छूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। और आप गौर कीजिए, जब वो उस उम्मीद से निकली है तो आप गौर करें कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा अपने अंदर कमजोरी और वीकनेस को महसूस करती। लिखा यीशु जब उस बाजार से, उस गली से, उस मोहल्ले से गुजर रहे थे, जब उसने ये सुना तो वो चुपके से अपना मुंह को कपड़े के साथ लपेटती है और चुपके से भीड़ में चले जाती। और भीड़ में कमजोर शख्स जो है वो कभी अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता, मगर इस औरत की उम्मीद ये है, इस औरत की सोच ये है कि मैं यीशु को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। तो इसके अंदर ईमान पैदा हुआ। जब ईमान पैदा हुआ तो वो ईमान जो है उसे दुख में से भी गुजार रहा है, उस भीड़ में से भी गुजार रहा है। और लिखा है कि वो भीड़ में जाते हुए कई ठोकरें लगी, कई उन्हें धक्के मारे, मगर वो ना उम्मीद थी, उसे उम्मीद नजर आ रही थी, उसे उम्मीद नजर आ रही थी, उसे अपना मौजज़ा नजर आ रहा था, उसे अपनी बरकत नजर आ रही थी, उसे अपनी खुशहाल जिंदगी नजर आ रही थी, उसे अपना मुस्तकबिल अच्छा होता हुआ नजर आ रहा था। उसने ठोकरों की परवाह नहीं की, उसने उस भीड़ की परवाह नहीं की, उसने उस भीड़ में धक्कों की परवाह नहीं की, उसने उस भीड़ में करब और मुसीबत की हालत में इन सारी चीजों को इग्नोर किया और वो यीशु की जानिब बढ़ती गई। शायद
आप भी जब यीशु की जानिब बढ़ते हो तो आप भी दुखों और प्रॉब्लम में से गुजरते हो, मगर जब आपको ना उम्मीदी में उम्मीद नजर आती होती है तो आपको जब अपना गोल और फोकस और बरकत नजर आ रही होती है तो आप फिर आपके कदम जो हैं वो रुकते नहीं है, चलते जाते। और उस औरत के कदम रुके नहीं, वो बढ़ती गई और बिलाखिर उसने यीशु की पोशाक को छू लिया। लिखा है राइट नो फिलफोर खुदा ने उसकी जिंदगी में ग्रेट मोजज़े को देखा और यीशु भी रुक गए। यीशु ने कहा मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। और शागिर्द कहते ऐ खुदावंद भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा और छूना और बात है, मगर मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। कोई ना उम्मीद था जिसे उम्मीद मिल गई है, कोई बेसहारा था जिसे सहारा मिल गया है। वो रुक गए और लिखा है कि वो डरती और कांपती हुई औरत सामने आई और उसने अपने शिफा और अपने मोजज़े को हासिल किया। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, अगर आप अपनी मुश्किलात से हार चुके हैं, तो आपके लिए नाउमीदी में एक उम्मीद है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो आपके लिए सलामती के ख्यालात रखता है। दुनिया में हर कोई आपके बारे में बुरा सोच सकता है, मगर यीशु मसीह ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके लिए अच्छा सोचता है। हालेलुया। आए उसे अपनी ज़िंदगी दें, आपकी ज़िंदगियों में खुशहाली आ जाए। सो गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।